Hello everyone, welcome to our YouTube channel Banana Academy. From today onwards, we are going to start a new video series that is Play with Graphs. You see, why this particular topic we have started because जब graphical representation की हम बात करते हैं, so there are a lot of things related to graphs that we must understand. Okay, and graphical representation, when I say, it's not like only the graphical representation, but to find the relationship between those two variables for which you are trying to create a graph or design a graph. Okay, now बिफोर आई गो फर्दर देर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ओके कि भाई जो ग्राफ्स बनते हैं वो बनते किसके लिए हैं सो लाइक इफ इट्स रिटन लाइक एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन fine, so you need to take this particular function. Now I'm going to discuss what is a function. You need to take this particular function and you need to create the graph. Fine, so we must understand ki what are the different categories of graphs. We must understand ki what are the different curvatures that are formed. Okay, how you can map those curvatures with those with the function for which you are creating the graph. Okay, and mathematically how this particular uh, uh, topic can be understood in more finer detail so as to understand the graphical representation as a whole. Okay, now you see, सबसे important part है कि ये video series का significance क्या है. Okay, so like this is especially important for those students who have started their studies from class 11th onwards. Okay, so क्या है, जैसे class 9 से आप जब studies करते हैं, irrespective of whether you are in ICSE board, CBSE board or any other state boards of the country. Okay, so irrespective of that, जब भी आप 9 से अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस देखते हैं, है ना. रैशनल फंक्शंस देखते हैं, इररेशनल फंक्शंस, पॉलिनोमियल फंक्शन. स्पेशली व्हेन यू आर इन क्लास 11th एंड 12th, वहाँ पे क्या होता है, कुछ कोनिक सेक्शन, सर्कल, कार्टेशियन इक्वेशंस. ओके, सो यहाँ पे क्या होता है कि इनके लिए कुछ कर्व्स ट्रेसिंग होती है इनकी. ओके, कुछ कर्वेचर्स फॉर्म होते हैं, देयर ट्रांसफॉर्मेशन ग्राफिकली वी नीड टू अंडरस्टैंड. सो ये सारे टॉपिक्स बहुत एडवांस टॉपिक्स होते हैं, लेकिन इसके लिए हमें ना बेसिक जो नॉलेज है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है फंक्शन का, वो जानना बहुत जरूरी होता है. एंड अगर आप जेई मींस जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम आईआईटी की प्रिपरेशन करते हैं या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करते हैं जहाँ पे आपको जो है एग्जामिनेशन को इस में कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जिनको सॉल्यूशन करने के लिए, जिनको सॉल्व करने के लिए आपको क्या है कि आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए. तो यहाँ पे क्या होता है, ये वीडियो सीरीज जो है आपको उन फंक्शंस के बारे में एक्सप्लिसिटली इंफॉर्मेशन देगा. नॉर्मली क्या होता है कि आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं और उसके अंदर में जो जो ग्राफ्स हैं उसको समझते हैं, लेकिन यहाँ केवल ग्राफ्स की बात करेंगे. ओके, थ्रू आउट दिस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज. नाउ बीइंग having told you that the significance and the topic that we are going to discuss, now let's talk about how we have categorized our topics. You see, we have categorized our play with graph title in three different categories. One is your introduction to graph as a whole. Okay, so herein we will be discussing the different types of functions. Okay, and how those functions can be converted into graphs, fine, or can be represented in the form of graph. Then comes your second topic, that is curvature and transformations. Now, what do you mean by curvature and transformations? What is a curvature? What is concavity? What is convexity in the graph? What is the meaning of inflection? What do you mean by plot? What do you mean by when I say plotting of algebraic curves? Okay, then how can you perform the graphical transformation? Now, if I ask you that you need to plot the graph of max fx comma gx, where fx and gx are two different functions, या minimum of fx comma gx आपको अगर calculate करना है और graphically you need to show how you can do that. So ये topic जो 2 है इसमें we are going to discuss that, right? And then finally our third topic, that is asymptote, singular point and curve tracing. जो मैंने आपको बताया था, different types of curves होते हैं, जैसे कार्टेशियन इक्वेशन होता है ना, सर्कल का इक्वेशन होता है. So how you can represent it, those equations graphically. Okay, तो उसके लिए क्या है, आपको कुछ topics पता होना चाहिए that are asymptote, singular points, है ना, and tracing as a whole, how you can trace the curves. Fine. So these are the topics that we are going to discuss. ये broad topics मैंने आपको बताया है, ठीक है, since this is the first video.
So you should understand what we are going to discuss in the future. Fine. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, दैट इज व्हाट, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ. ओके, सो व्हेन आई से इंट्रोडक्शन टू ग्राफ, यू सी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट फंक्शंस एज अ होल. ओके, व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शन? तो देखो, जब भी हम फंक्शन की बात करते हैं, ओके, तो व्हाट इज अ फंक्शन, बेसिक्स ऑफ फंक्शन, ये जो मैं मैथमेटिक्स का वीडियो ट्यूटोरियल स्टार्ट करने वाला हूँ, उसमें आई एम गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंक्शन एंड व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस, हाउ यू कैन रिप्रेजेंट द फंक्शन. बट यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही नई फॉर्म में, वेरी बेसिक फॉर्म में आपको मैं बता सकता हूँ कि फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ ऑफ एक्स से. ओके, एंड लेट अस सपोज देयर इज अ फंक्शन फॉर द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन. ओके, तो ये जो फंक्शन एफ से रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पे, एक्चुअली क्या है, दिस एफ denotes the function and this function is over a variable. What is that variable? X. Okay, और इस particular function f of x को what you can do is you can write it, rewrite it as y is equal to f of x. Okay, so now if I write this, so definitely this equation can be written as y is equal to x square plus x plus 1. Now it is very much clear. जब मैं यहाँ पे आपसे बोलता कि भाई इसका ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ओके, तो इट वाज डिफिकल्ट ना भाई, ये एफ ऑफ एक्स क्या होता है. सो y is equal to f of x means y is equal to x square plus x plus 1. Now you can understand that there is a need of two-dimensional graph. What is the two-dimensional graph? Two-dimensional graph is this one where one is y-axis and another is x-axis. So definitely यहाँ पे जो है different आपके पॉइंट्स हैं, जीरो से स्टार्ट होता है. सिमिलरली एक्स एक्सिस पे देयर आर डिफरेंट पॉइंट्स एंड नाउ यू आर गोइंग टू प्लॉट सर्टेन ग्राफ. ओके, सो व्हाट इज दैट ग्राफ? दैट इज कि भाई आप x की वैल्यू क्या करोगे, 1 2 3 ऐसे पुट करते जाओगे और करस्पॉन्डिंगली जो आपकी वैल्यू आती है, जैसे 1 पुट करूंगा तो 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 आ जाएगी. ऐसे करके जो वैल्यूज आएगी तो उसके बेसिस पे आप यहाँ पे x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3, यहाँ से आपका कर्व स्टार्ट होगा. सो व्हाट आई एम टेलिंग यू इज कि भाई जो आप फंक्शन है, उस फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए आपको ये इंपॉर्टेंट है कि आप उस फंक्शन को पहले समझो. ठीक है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. ठीक है, वन थिंग इज दिस. सेकंड इज, अब आपको ये समझना है कि जब भी हम कहते हैं f of x is equal to y, it means when I say y is what, y is a function of x actually. ठीक है, y is a function of variable x. फंक्शन ऑफ वेरिएबल x जब मैं कहता हूँ, इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू जैसे जैसे वेरी करेगी उसके बेसिस पे y की वैल्यू भी वेरी करेगी. ओके, सो y is a function of x. As you vary the values of x, as you increase or decrease the values of x, so your value of y will increase or decrease, or it depends on the variation of the values of x actually. So that's what the concept, or that's what the idea behind saying that y is a function of x and represented as y is equal to f of x. ठीक है, तो जहां भी आपको f of x मिलेगा समझ जाओ कि भाई that is y actually. ठीक है, और देखो, this is standard wherein we represent. अभी कई लोग के क्वेश्चन ऐसे होंगे कि भाई अगर मैं f of x इक्वल टू z ले लूं, यू कैन टेक इट, लेकिन क्या होता है ना, जब हम टू डायमेंशनल की बात करते हैं तो उसमें वन डायमेंशन क्या, हम मैथमेटिक्स में x लेते हैं एंड सेकंड डायमेंशन क्या लेते हैं, हम लोग y लेते हैं. ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं ना कि हम नॉर्मली y लेते हैं. जब हम थर्ड डायमेंशन की बात करते हैं, ठीक है, जहाँ पे एक और डायमेंशन होगा z, तो वहाँ डेफिनेटली वी कैन थिंक ऑफ कि भाई z को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे. ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग इस तरीके से नहीं कर रहे हैं. फाइन. Now let's talk about, since we have discussed about what is basically a function and we have discussed about how you can create, how your graph looks like. Now we are going to discuss about the categories of function. Okay, so let's talk about the function categories. So you see, when I say function has two categories. One category is known as algebraic function. Okay, algebraic function, and second category is known as transcendental function. Transcendental function. Fine. Now what is the difference between algebraic and transcendental function? You see, algebraic function की हम जब बात करते हैं ना, तो algebra में क्या आ जाता है, polynomial आ जाता है, rational number आ जाता है, irrational number आ जाता है. So on the basis of that you can divide it also. Like I can divide it as algebra as uh,
polynomial function. Okay, second category is rational function. Okay, third category is irrational function. Fine. And there is a fourth category that is known as piecewise function. Piecewise फंक्शन नाउ जो आप पॉलिनोमियल के बारे में जानते हैं ओके जैसे कि ये क्या था ये पॉलिनोमियल था x स्क्वायर प्लस x प्लस वन इज व्हाट इट इज अ पॉलिनोमियल ठीक है तो सिमिलरली जो आप पॉलिनोमियल के जानते हैं सेम चीज है फंक्शन भी क्या होगा पॉलिनोमियल की टाइप का होगा रैशनल नंबर व्हाट इज रैशनल नंबर हम कहते हैं ना p by q where q is not equal to 0 irrational number just opposite of rational number fine and piecewise now what do you mean by piecewise function तो देखो piecewise function में ना डिफरेंट डिफरेंट सब कैटेगरीज ऑफ फंक्शन आते हैं जैसे कि वन इज मॉड्यूलस ठीक है मॉड्यूलस फंक्शन का यूज क्यों होता है हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू जब निकालते हैं उसके लिए मॉड्यूलस का यूज करते हैं सिमिलरली क्या है एक होता है सिग्नम फंक्शन ठीक है सिमिलरली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना वन इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड देयर इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द फंक्शन है ना देयर इज वन अनदर कैटेगरी कॉल्ड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन सिमिलरली लीस्ट इंटीजर फंक्शन है ना इसका एक और कैटेगरी ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो एक लीस्ट इंटीजर फंक्शन भी हो सकता है ठीक है तो ये क्या है पीसवाइज की कैटेगरी अब ये किसके अंडर आया अलजेब्राइक मतलब क्या हो गया जो आप अलजेब्रा की रूल्स पढ़ के आए हैं सेम थिंग्स आर देयर ओके इसमें अलजेब्रा में क्या हो सकते हैं पॉलिनोमियल हो सकते हैं रैशनल नंबर्स हो सकते हैं इरैशनल नंबर्स होते हैं एंड पीसवाइज मतलब ऑपरेशन ऑन दोज है ना तो उसके लिए जो फंक्शंस हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो जो हम लोग क्रिएट करते हैं दोज फंक्शंस आर रिटन ओवर हियर now second category of function is known as transcendental function now what do you mean by transcendental function तो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में क्या होता है इसमें एक ऐसा इक्वेशन क्रिएट होता है जिस इक्वेशन में कौन कौन सी वैल्यूज आती हैं जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आएगी और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं इसमें ठीक है देन सेकंड कैटेगरी इज लॉगरिथमिक फंक्शंस आते हैं फाइन उसके बाद क्या होता है इसमें जो है एक्सपोनेंशियल आते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आते हैं ठीक है इसके बाद ज्योमेट्रिक कर्व्स आते हैं इसमें वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग ज्योमेट्रिक कर्व्स आते हैं और उसके बाद क्या आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कर्व्स तो जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या होता है इसमें होता है साइन कॉस है ना tan कॉट कोसेक सेक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या होता है साइन इनवर्स कॉस इनवर्स सो वी आर गोइंग टू सी ईच एंड एवरीथिंग और हम लोग समझेंगे कि भाई ये जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक लॉगरिथमिक तो लॉगरिथमिक अगर मैं कहता हूँ तो इसमें क्या आ जाता है लॉग है ना सिमिलरली एक्सपोनेंशियल कहता हूँ तो क्या आ जाता है e टू द पावर x ठीक है यहाँ पे क्या होता है log x हो जाता है ना ज्योमेट्रिक कर्व्स में क्या आ जाते हैं जैसे कि आपके सर्कल हाइपरबोला पैराबोला है ना these curves come so we are going to see each and everything in detail fine ये जो logarithmic होता है ना इसको हम लोग क्या है inverse of exponential भी कहते हैं है ना for your understanding logarithmic is also known as inverse of exponential ठीक है इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल यू विल सी जो एक्सपोनेंट होता है उसके इनवर्स करते हैं तो लॉग कैलकुलेट होता है ठीक है so we'll see in coming lectures so today what I taught you is what are the different what is the meaning of a function how you graphically represent it what are the two categories of function and their subcategory okay now from next time onwards from next video onwards we are going to first start with algebraic function and their subcategories we will see one by one and we will understand what are those categories and how the functions are represented in those categories fine so till then, thank you very much for listening to me. Have a nice day.